Okay, today we are going to read a little about HTML. Okay, all of you know that HTML is the minimum requirement to start working on web development. Every page which are available on the internet are using HTML to display their content, right? So HTML is a markup language. You cannot write down data structure or algorithm into HTML, but that is essential to design your web page, right? To give markup to of your web page. So to start there are multiple version of HTML. As see yesterday we discussed about the version control system Git. So we understand that how the version is important, and time to time as a software or a programming language or anything which get upgraded with some feature and functionality, then a new version release. So we should know what is the difference between HTML versus HTML5. Now the HTML5 is everywhere. We are using the HTML5. There are few tags like audio, video, and better support of the JS working into the background. These features has been added into HTML5. Earlier in HTML, if we have to play a video or we have to play audio, music, these kind of things, then we have to use a third party flash player to play these media clips, right? So this is the difference between HTML and HTML5. And if you would like to explore more on this, you can read about this on this particular link of Geeks for Geeks. Okay, let me open the VS Code and start writing few of HTML5. Okay, let's go into this our learning directory, create a new folder, day 3, and create a new file, index.html. Right, so this .html is the extension of your HTML file, and then let me open this folder here. The learning bootcamp 2 day 3 and select folder. Okay, so this is our VS Code setup environment. Let me open the index.html file. There is nothing into this file right now, and we are going to start writing the HTML code. See, this is the magic of in IDE. It is either you will, if you are using Notepad or any other text editor, you will have to write each and everything. But editor, this IDE helps you to save your time. जो भी unnecessary की repeating चीजें हैं, they manage these things themselves. So we should take help of editor. Doc type HTML. This is the first line that we use to write. Okay, that tell the browser that this page contain the content of HTML type. Right, we can write down HTML, HTML5. We can set the strict type of the HTML. So कुछ error आए तो हमें पता लग जाए. But this is the first line which if I talk about the definition, doc type is the first line which tell browser that this document contain the HTML. Next, every HTML page start with the HTML and end with the HTML. Then another tag head tag is used to display the meta information about this page. तो जो भी आप हेड टैग में लिखेंगे ये आपके पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा, बट ये आपकी मेटा इंफॉर्मेशन को कंटेंट करके रखता है. लेट्स सी, मैंने इसको सेव किया एंड सी अभी देखो कुछ स्पेस थी और ये बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट हो गया. जैसे हम इसकी बात करते हैं और इसको हम थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर.
राइट। और जैसे ही मैं इसको सेव कर रहा हूं तो आप देखोगे सारी चीजें प्रॉपर एक तरह से इंडेंट हो गई। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ IDE यूजिंग ए प्रॉपर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये किस वजह से हुआ? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी शुड इंस्टॉल द Prettier extension for this. So go to this extension icon here, click on this and install, search Prettier. Prettier is a code formatter extension for VS Code. You need to install that and change the setting to format your page while you do save the page. Right. Okay, so we were running this page, right click, open with live server. We already discussed that we should install the live server so we can run page directly from the VS Code. तो वहां से हमने इस पेज को चलाया, then you will see nothing is displayed here. This is because we did not write anything into the body tag. Right. So head is contain the meta information. Title tag, it is the title of page. जो कि एड्रेस बार में यहाँ पे दिखता है. आई जस्ट हाइड आउट दिस टाइटल, दिस वन document. This is the title of our web page, so we can write down something else. This is my first HTML page, and you see this has been changed. You don't need to refresh this. ये किस लिए हमें refresh क्यों नहीं करना पड़ा? Because we have the live server extension installed on our VS Code. Body tag is द टैग जहां पर कि वो सारा कंटेंट आप रखते हो जो कि आपके इस वेब पेज में यहाँ पर डिस्प्ले होगा. लेट्स राइट डाउन समथिंग. हाय, आई एम स्टार्टिंग लर्निंग HTML. ओके, एंड देन यू सी दिस विल डिस्प्ले हियर. ओके, सो बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर आपका जो बॉडी कंटेंट है, दिस वाइट एरिया, कंप्लीट वाइट एरिया that called the body part of your HTML web page, वो यहाँ डिस्प्ले होगा. Now there are multiple tags into HTML जो कि आपके वेब पेज को फॉर्मेट करने का काम करते हैं. वो टैग्स हमें स्टडी करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, प्रैक्टिस करने हैं. लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ. फॉर्मेटिंग टैग्स में वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग, EM, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन. हेडिंग आर यूज टू डिस्प्ले द हेडिंग. दिस आर फ्रॉम H1 से H6 तक टैग होते हैं. पैराग्राफ, P टैग, जस्ट टू राइट डाउन द पैराग्राफ. इफ यू वांट टू मेक सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बोल्ड, you can use strong and B. If you want to make italic, EM, I, so whatever you do into the word. So जब हम MS Word, hope you everybody is familiar about MS Word. तो MS वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप अपना रिज्यूमे ही बना रहे हो, तो यू डू लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग ओवर देयर. कि आप किसी को आपका नाम लिखना है, वो बोल्ड और बड़े कैरेक्टर में आना चाहिए, तो दैट इज बिकम द हेडिंग. आपको कुछ और बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, किसी चीज को इटैलिक करनी है, तो जो जो फॉर्मेटिंग बार्स हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू इनटू द HTML. बट हियर यू विल हैव टू यूज दीज मार्कअप टैग्स ऑफ HTML. तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट टू प्रैक्टिस दैट, क्या करते हैं, कल हम एक गिट का एक डॉक्यूमेंट देख रहे थे, हम उसी को एक बार वापस से रीडिजाइन करते हैं इन द HTML, सो यू मे गेट अ बेटर आइडिया अबाउट दैट. ओके, 10 मिनट बाद हमें दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर द कंटेंट. हमें लेट्स से कि हमें ये पेज बनाना है ना, इस बिल्कुल सिमिलरली ऐसे के ऐसे. तो हम इस कंटेंट को एक बार कॉपी करते हैं यहाँ से एंड लेट्स पेस्ट इन आवर बॉडी. अभी बिल्कुल भी फॉर्मेटेड नहीं है, ये एक सिंपल सा टेक्स्ट जैसे हम लिखते हैं नोटपैड में, वैसा का वैसा ही है. बट हमें इसको इस तरह से फॉर्मेट करना है, हमें हमारे वेब पेज पर इसको इस फॉर्मेट में दिखाना है. नाउ लेट्स सी हाउ इट इज डिस्प्लेइंग ऑन आवर वेब पेज. जस्ट ए सिंपल टेक्स्ट, एक ही लाइन के अंदर है सारा का सारा. बट वी हैव टू फॉर्मेट दिस बाय यूजिंग HTML in this format. So this is
the heading of this page. So what we will use that for heading? We will use heading tag. और heading tag जो है हमारे वो H1 से लेकर के H6 तक होते हैं. H1 is the largest one and H6 is the smallest one. Okay, तो ये हमने heading लिखी. Let's save this. हमने save किया and then we see this become the heading of this page. Now, what is the next? Let's look here. This is the small heading content tracker. कंटेंट ट्रैकर यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं. लेट्स से H3 यूज करते हैं. H2 की बजाय H3 यूज करते हैं. थोड़ी ज्यादा छोटा करना है उसको इसलिए. तो दैट ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि व्हाट टैग यू वुड लाइक टू यूज. सो दैट बिकम द कंटेंट ट्रैकर. वी आर ऑन द ट्रैक. नाउ दिस इज ए पैराग्राफ. So what we will do that? We will use the paragraph tag. Key tag we have been used are Rex inside the paragraph, and then let's see how it displays. So that become the paragraph. Next, version control again, because this content tracker and version control both are sharing same font size, same style, then we will use same H3 tag on this version control. H3 version control. Okay, and then this is the paragraph key, and we will close it here. After this distributed will be again in the same style of content tracker. So we are using the H3 here. Save it and let's check it. Okay, so this is the way we are using the HTML to format to design our web page. This is a paragraph. So far we have used 3 HTML tag inside the body. After body, one is H1, H3 and paragraph tag. Now you will see that this is a link. So इस लिंक को हमें अगर किसको क्लिकेबल बनाना है, लेट्स चेक इट आउट दिस फर्स्ट. ये जो लिंक है इसको हमें क्लिकेबल बनाना है. सो हाउ विल यू डू दैट? वी हैव ए HTML tag called anchor tag. We will use a href. href में हम उस लिंक का पाथ देते हैं and this link, or we can write down here read more about git. So here you will see, अगर आप ब्राउजर पे आके देखोगे तो हमारा लिंक बन गया. एंड व्हेन यू विल क्लिक दैट, सो दैट विल ओपन दिस फ्री कोड कैंप वेबसाइट. सो हमें लिंक करने के लिए वी यूज द एंकर टैग, वी यूज द href टू पास द टारगेट ऑफ दैट लिंक, एंड दिस इज द लिंक टेक्स्ट जहां पर कि आपका लिंक बनेगा. देन फाइनली वी विल हैव द closing tag. Every HTML tag must have a closing tag. Sometime कुछ इस तरह के टैग्स होते हैं जो सिंगल टैग होते हैं, जिनके बीच में कंटेंट नहीं होता है. लाइक यहाँ पर आप देखो H1 है, H1 स्टार्टिंग टैग है, H1 क्लोजिंग टैग है और बीच में हमारा कंटेंट है. H3 इज विद द सेम बिहेवियर, पैराग्राफ विद द सेम बिहेवियर. सिमिलरली एंकर टैग ऑल्सो हैव द सेम बिहेवियर. लेकिन लेट्स से कि आपको यहाँ पर एक लाइन ब्रेक डालना है, एक लाइन डालनी है. देन व्हाट यू विल यूज दैट? यू विल यूज BR टैग टू पुट ए लाइन ब्रेक. बट BR के अंदर कोई कंटेंट अपने को लिखना नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग. तो इस तरह के टैग में हम लोग उसी टैग के एंड में उसको क्लोज कर देते हैं. यू सी हियर यू विल हैव अ लाइन ब्रेक. आफ्टर दिस मल्टीपल लाइन ब्रेक डालना है, यू कैन यूज मल्टीपल BR. ओके, नेक्स्ट, हाउ इट इज डिजाइंड. More about it. Again, a large heading looks like similar to this. So what we will use? Either H1 or H2.
Okay, and what is the next? This is a list of items. So to write down the list of items, there are two tags. One is order list. Let me write down here. One is order list that we called OL. OL. Okay. Other one is unordered list, and that is called UL. What is the difference in both of these? अगर आप इसका नाम ही पढ़ेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर का मतलब कि आपको नंबर दिखाएगा लिस्ट के सामने, लाइक 1 2, और अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब नंबरिंग नहीं होगी, समथिंग लाइक बुलेटेड लिस्ट कि आपके सामने बुलेट्स आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं। तो दो तरह की लिस्ट है विच वी कैन यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट। हेयर अगर आप यहाँ देखोगे तो वी आर डिस्प्लेइंग नंबरिंग 1 2 3 4, so let's make it ordered list OL, and सारे आइटम लिस्ट के अंदर है तो वी विल राइट डाउन इट एट द एंड ऑफ OL, and then each and every item should be inside the LI. LI display numbers, or if it is unordered list UL, then it displayed the bullet icon. Okay, this become LI, initialize the existing directory, and उसके बाद git init इसके अंदर है, it's a different unordered list, parent order list is this, and git init is the child order list. So what we can do that we can write down this inside of LI, और ये हम इसको अनऑर्डर कर लेते हैं UL LI git init. ओके, अभी इसको एक बार यहीं बंद कर देते हैं, नीचे बाद में करेंगे, so we can see the proper output. Now let's check our output, and you see we have created first bullet list, initialize the existing directory, and इसका जो child list है वो भी हमने create कर दी. Move further, read about git. This is the second bullet list. So now OL should be after this, and this one should be second bullet of ordered list, and ये दोनों इसके child होंगे तो we will make a unordered list inside that, this one, and this should be second. Okay, let's check it out. ठीक है, दो बार git help आ रहा है, मतलब सेकंड कंटेंट आपका git verb है. ओके, एंड ये वर्ब नहीं कर रहे, इसको HTML टैग माना इसने, हम एक बार हटा देते हैं इसको. ओके, तो देखो जैसे मैंने सेव किया पूरा आपका कोड फॉर्मेट भी हो गया विद द हेल्प ऑफ prettier. तो इस तरह से हम इसकी पूरी को, जैसे पूरा पेज है बाकी और आइटम को भी हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं. तो सी दिस पार्ट इज इन बोल्ड लेटर, so let's display this git help or verb into the bold letter. So what tag we can use? Strong verb अगर in strong के अंदर होगा then that will display into the bold format, right? Okay, so we were talking about formatting the content. So we use the strong tag to make this verb bold. अगर हमें किसी को italic करना है तो what we will use that EM. So these are all tags that you will have to learn about to format your HTML page. So यहाँ पर हमने read about git को italic किया, so that become italic. Okay, now let me come here again. So you understand that how the HTML page is built up. There are many of HTML tags that you will have to use. You will have to format your HTML page. Line break, horizontal line. If you want to display a image,
Then what tag you will use? Let's say a display image here. So img tag will be used. उसका जो एट्रीब्यूट होगा src, जैसे हमने एंकर टैग में यूज किया था href, उसमें हमने लिंक ऐड किया था। img इमेज आपको डिस्प्ले करनी है, तो कौन सी इमेज डिस्प्ले करनी है वो पाथ देने के लिए हम लोग src एट्रीब्यूट यूज करेंगे। src इक्वल टू, और यहाँ पर उस इमेज का पाथ देंगे। तो कुछ इमेज निकाल लेते हैं, लेट्स से कि गिट के लिए कुछ इमेज निकालते हैं, इमेजेस, और उसको उसका पाथ यूज कर लेते हैं। यही यूज कर लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। बहुत बड़ा पाथ हो गया यार। Okay. कोई दूसरा यूज करते हैं, वो ज्यादा बड़ा है। ये यूज करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस अगेन। ये पाथ यूज करते हैं बाइनरी पाथ के अलावा, वो बाइनरी पाथ दे रहा है हमें। HTTP पाथ यूज करते हैं, दिस वन। एंड इमेज टैग, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं आएगा, कंटेंट तो आपका src एट्रीब्यूट में आ चुका है, तो दैट शुड बी सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये हमने बंद किया, सेव किया, एंड देन we came here and your image is displayed on web page. There are multiple attributes you can use into a single tag. So हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं just to define what should be the width. Let's say 150. तो आपकी इमेज की विड्थ भी कंट्रोल हो सकती है। यू कैन कंट्रोल द हाइट एज वेल। देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यू कैन यूज। ओके, टेबल टैग। Table is used to define the tabular data, like we have a spreadsheet जहाँ पर cells होते हैं, row होते हैं, column होते हैं। तो we used to define the let's say कि हम लोग क्या बनाते हैं, एक्सेल सीट खोलने तो मुझे, so you guys can see that what we are going to make and then just connect. Let's say कि हम बनाते हैं this is serial number, name and डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कोर्स कौन सा कर रहे हैं, ये हमें एक स्टूडेंट की टेबल बनानी है, राइट। ओके, so this is one राकेश, लेट्स से 01 अगस्त 22, कोर्स जावा स्क्रिप्ट डेवलपर, और लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपर। और इसी को कॉपी कर देते हैं एक बार, तो हम अभी लिखने के बजाय, तो ये ग्रिड हमें बनानी है हमारे वेब पेज के ऊपर। सो इफ बिकॉज दिस इज a table, so you will use the table tag. Let's use the table tag and टेबल में हम लोग सबसे पहले रो बनाएंगे। दिस इज द रो, फर्स्ट रो हमारी हेडिंग है, तो वी विल यूज th। पहली हेडिंग में हमें क्या लिखना है, सीरियल नंबर। देन दूसरे सेल में हम क्या लिखेंगे, नेम। तीसरे सेल में हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस, doj। एंड लास्ट वन इज कोर्स। तो ये हमारी एक रो बन गई। वी यूज द th बिकॉज ये हमारी हेडिंग रो है। लेट्स सी इट, ये हमारी यहाँ पर टेबल बन गई, राइट। इसका बॉर्डर वगैरह अगर अपने को देना है, तो वी कैन स्पेसिफाई बॉर्डर हेयर। बॉर्डर इक्वल्स टू लेट्स से 5 दे देते हैं, 5 पिक्सल का आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी हेडिंग बन गई। नाउ अब आपको दूसरी रो बनानी है डेटा की। सो अगेन यू विल स्टार्ट द रो td, td is table data, serial number 1 td राकेश, td dog, let's say 01 अगस्त 22 td फ्रंट एंड
development. So that become your next row. Multiple rows you will have to make. You can just copy out. हमारी थोड़ा क्विकली करने के लिए हम इसको कॉपी कर देते हैं. So that becomes 1 2 3 4 row. इस तरह हम इसमें टेबल्स बनाते हैं. Now because जब कोई पेज को पढ़ रहा होगा, there is a term semantic HTML, if you guys heard about that. और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि we use some semantic tags जो कि डिस्प्ले में कोई हेल्प नहीं करते, बट इन योर कोड, चाहे कोई इसको प्रोग्रामर रीड कर रहा हो या ब्राउजर रीड कर रहा हो, कंपाइल कर रहा हो आपके कोड को, उसको हेल्प मिलती है समझने में. अतीश अपना म्यूट कर लो. उनको हेल्प मिलती है समझने में कि ये आपका कोड किस पर्पज के लिए लिखा हुआ है. तो लेट्स से कि दिस इज हेडिंग ऑफ योर टेबल रो. तो वी हैव ए टैग टी हेड. आप इसको यूज करें या नहीं करें, आपके डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट ऑलवेज प्रेफर्ड, इट इज प्रेफरेबल, रिकमेंडेड टू यूज द सिमेंटिक HTML. कि आपको जो भी सिमेंटिक टैग्स हैं, हम पढ़ेंगे उनके बारे में अभी आगे चल के, वो हम यूज करें. Right, this is the body of your table, so we use the T body tag. ये आपका यहाँ खत्म है. और अगर आपको फुटर में कुछ पेजिनेशन वगैरह दिखानी है, so you use the T foot tag. Right, अभी हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तो we will not use that. Okay, so you will see there is no difference into the table, but that is easy to understand for other programmer that this is the heading tag. Okay. Now you see this gap between two cells, serial number and name. You can control this gap by using cell spacing equal to, let's do it 20. तो आप देखोगे कि आपका जो सेल्स के बीच का गैप है ज्यादा बढ़ गया. एंड इफ यू सी दिस फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसके चारों तरफ कोई स्पेस नहीं है. सो दैट एक बॉक्स के अंदर अगर आपको कुछ स्पेस डालनी है, दैट वी विल डिस्कस व्हाइल वी आर स्टार्टिंग द CSS. उसमें बॉक्स प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि आपका अगर कोई बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आपको स्पेस जनरेट करनी है, तो दैट्स कॉल्ड पैडिंग इनसाइड द बॉक्स. सो व्हाट वी विल यूज दैट, ये हमारा एक सेल है, सेल की पैडिंग 10 दे देते हैं. सो यू विल सी द डिफरेंस कि आपके सेल के अंदर ये पैडिंग क्रिएट कर देगा. सो दिस इज द वे टू क्रिएट द टेबल. Link, we already have discussed that we can use anchor tag to link the external page. Internal, we will discuss later about that. Unordered list, order list, we already discussed. Form. So you guys must have to use many of the website. You use purchasing the items on Flipkart, Amazon, and you add the item into the cart, and then you fill up some details like if you're creating the account over there, you will tell the web browser that this is my name, this is my email address, this is my phone number. So all these data web page capture by using form tag. कि आप एक फॉर्म बनाते हो, उस फॉर्म के अंदर आप अपने कंट्रोल्स लिखते हो कि आप उससे अगर आपको नेम लेना है तो यू यूज द इनपुट टैग. अगर आपसे उसको लेट्स से कि सिर्फ जेंडर लेना है, तो उसमें एक ही चॉइस होगी, आइदर मेल और फीमेल, तो आप उसके लिए रेडियो बटन यूज करोगे. आपको सिर्फ एक सिंपल सी टर्म्स एंड कंडीशन चेक करवानी का, एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप एक चेक बॉक्स लगाओगे. या मल्टीपल वैल्यूज आपको सेलेक्ट करवानी है, तो आप मल्टीपल चेक बॉक्स लगाओगे. सो ऑल दीज आर फॉर्म फील्ड्स जो कि आप यूजर से डेटा इनपुट कैप्चर करने के लिए यूज में लेते हो. सो आई विल लीव दीज फील्ड्स ऑन यू टू रीड अबाउट योर सेल्फ. ओके, सो दिस इज द वे वी राइट डाउन द HTML. एंड मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यू गाइज विल, कि आपको ऑलरेडी पता होगा इन सब चीजों के बारे में. वी जस्ट डिड ए revision on that, and so you may ask any question if you have based on
your previous experience, or we are done for the today. We can discuss what assignment we may have for tomorrow. So any question so far? No, Interesting? sir. No, okay, Kanchan. Interesting लग रहा है HTML अभी? नहीं? Yes, sir. ओके, सो लेट्स डू। आप लोगों ने कभी अपना रिज्यूमे बनाया, डिजाइन किया है वर्ड के अंदर? बनाया है? ओके, No. तो नो नहीं सर। बनाया है? नहीं बनाया है तो बनाओ। ठीक है, मुझे क्या करना है, असाइनमेंट है आपका कल के लिए, सभी लोग तैयार के साथ आएंगे अपना रिज्यूमे बना करके, और उस रिज्यूमे को गिटहब के ऊपर अपना जो रेपोजिटरी बनाएंगे उसमें एक फाइल बना लेना, resume.html। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे नहीं देखूंगा मैं, गिटहब का लिंक लूंगा वहां से आप लोगों से। ठीक है, जिससे कि समझ पता लगे कि आप लोगों को गिट का क्लोन करना, पुश करना, कमिट करना आया नहीं आया, उस लर्निंग होगी वहां से। आपको एक HTML पेज बनाना है, अपना अपना रिज्यूमे, अपनी अपनी फॉर्मेटिंग स्टाइल में। इंटरनेट पे सर्च करो, कुछ भी करो, कहीं से भी देखो कि रिज्यूमे कैसे बनते हैं, क्या क्या कंटेंट लिखना है, अपने बारे में लिखना है आपको। ये नाम, गांव, एड्रेस, पता, आ, एक छोटा सा इंट्रो पैराग्राफ, एक या दो पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ, एंड देन योर स्किल्स, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, योर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, व्हाट यू लाइक, योर हॉबीज, जो भी एक रिज्यूमे में हम लिखते हैं। आपकी फोटो भी वहां पर, इमेज टैग भी यूज होगा। ठीक है, और लिंक ऑफ योर गिटहब प्रोफाइल ऑन दिस पेज। तो ये आपको कल बना करके लेके आना है। ठीक है, अभी तक जो भी टैग हमने पढ़े हैं वो टैग्स यूज हो जाएंगे, कुछ और भी होते हैं तो यू गाइज नो अबाउट द HTML, यू कैन सर्च इट आउट एंड मेक ए ब्यूटीफुल रिज्यूमे। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन हो, डिस्कशन का पॉइंट हो, यू कैन आस्क, और वी आर डन फॉर टुडे। संग्राम, देयर? यस सर। गॉट द असाइनमेंट कि क्या करना है? यस सर। ओके, ओके, देन see you tomorrow. Hope everyone will have the assignment completed by then. We have 24 hours. Okay, bye bye, good day. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। फिर से खो गया, ये मिल गया।